ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਤਨ, ਮਨ, ਆਤਮਾ। ਵਿਚਾਰਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਤਨ ਠੋਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਖੜਿਆ ਉਖੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਨ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਤਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਰਬ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਬਸ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਖਤ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਨ ਸਭ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਨ ਨਿਆਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਨ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਨੇ, ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਤੇ ਰਵ ਸਸ ਕੋਟ ਜਲੇਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਰਵ ਸਸ ਕੋਟ ਜਲੇਸ। ਰਵੀ ਸਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੂਸਰੇ ਸੂਰਜ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक जमीन जैसी दूसरी जमीन नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक रेत दे जर्रे जैसा दूसरा जर्रा नहीं है। सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ भिन्न भिन्न है। अरबां खरबां लहरां सागर दे एक सैकंड दे पैदा होंदियां ने, एक लहर जैसी दूसरी लहर नहीं है, नहीं बनती। तन दे तल दे उत्ते इतनी भिन्नता है, इतनी अनेकता है। फिर गुरबाणी दा ये सिद्धांतिक नुकता, एक तन जैसा दूसरा तन नहीं है कि तन दे मोह दे तल ते जीण वाले ये दोस्ती, ये रिश्ते कोई बहुत लंबे नहीं होंदे, क्योंकि तन दी होंद ही कोई बहुत लंबी नहीं है। और तन जैसा देखे है, तन ते छिन छिन विच बदलता है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, दो मन एक हो सकते हैं। जो अगले दी सोचनी हो मेरी सोचनी हो सकती, जो मैं याद कर रहा वो भी वही याद कर रहे हैं। मेरी सोचनी दूसरे दी सोचनी हो सकती है, दूजे दी सोचनी मेरी सोचनी हो सकती है। जो मेरे विचार ने वही दूजे दे हो सकते हैं। जिसनों मैं याद कर रहा वो मैनू याद कर रहा है, तो ये दो मन एक हो सकते हैं। ते मन है कि यादां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह, विचारां दा प्रवाह। दो मन एक हो सकते ने, पर बहुत थोड़े नाल। मन दी सांझ भी कोई बथेरियां नाल नहीं बनन लगी, सारियां नाल मन नहीं मिलेगा। दूर क्यों जाओ, एक घर दे प्यो पुत्र दा मन भी एक नहीं होंदा, तन ते एक है ही नहीं। और ये भी अर्ज करदे हां, दो भरावां दे मन भी एक नहीं होंदे, तन ते एक है नहीं। लाजमी नहीं पति पत्नी दा भी मन एक होवे, तन ते एक है ही नहीं। सोचनी दा मेल होवे, विचारां दा संगम होवे, यादां दा इकट्ठ होवे, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई लाजमी नहीं है। भावें एक घर विच प्यो पुत्र रह रहे ने, भावें एक घर विच दो बिरा रह रहे ने, भावें एक घर विच पति पत्नी रह रहे ने, पर ये कोई लाजमी ते नहीं कि मन एक ने। तन भी अलग ने, मन भी अलग ने, सोचने अलग अलग है, विचार अलग अलग ने, ते प्रबल यादां भी अलग अलग ने। किधरे किधरे दो मन एक हो जाते, विचार एक हो जाते, सोचने एक हो जाती है, यादां एक हो जाती है। पर यह बहुतात दे च नहीं, व्यापक रूप दे च नहीं। अगर 5 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख रह रहे ने, तो मैं अर्ज करा कुछ सैकड़ियां दा या चलो 1000 2000 का ही जिक्र कर सकते हैं, मन एक ने, बाकी नहीं, किसी दे भी नहीं। भावें सारी जिंदगी कट्ठे रहे प्यो पुत्र, भावें सारी जिंदगी कट्ठे रहे दो बिरा, भावें सारी जिंदगी कट्ठे रहे पति ते पत्नी, कोई जरूरी नहीं मन एक होए होवन, विचार एक होए होवन, ख्याल एक होए होवन, यादां एक होवन। लेकिन फिर भी एकता क्यों बनी रहती है? आत्मा सारियां च इक्को है, अलग अलग नहीं है। आत्मा रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, पशु तो लेके देवते तक इक्को ही है। हस्ती कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। गुरु गोविंद सिंह जी। एक अखंड ज्योति जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, पशु तो लेके मनुख तो लंघदी हुई देवतियां तक इक्को ही है।
आत्मा का तल इको ही है, कोई अलग अलग नहीं है, इको ही है। मन एक नहीं है, तन भी एक नहीं है। इस वास्ते दुनिया दे कोई मुल्क दा कितना भी खैर खा क्यों ना होवे, कोई भी राजनीतिक अपने मुल्क दे भी एकता नहीं लिया सकिया मनुखां दी। कोई दार्शनिक चिंतक भी इसदे सफल नहीं होया। ये भी मैं अर्ज करदे हां, गुरुआं पैगंबरां ने कोशिश की मनुख किधरे आत्मा दे तल ते जीवे ते सब कुछ एक दिखाई देवे, उन्हां नूं पूरी सफलता नहीं मिली। क्यों? एक संग तराश जद पत्थर नूं घड़दा है ते मूर्ति बनांदा है, हथ दे छैणा लेके हथौड़ा लेके पत्थर इनकार नहीं करदा कि तू मैनू घड़ना। हालांकि मूर्ति पत्थर दे विच पई है, सिर्फ फालतू टुकड़ियां नू संग तराश एक पासे करदा है। कतई मूर्ति कोई आसमान तो लिया के पत्थर दे च नहीं सुटदा, पत्थर दे विचों ही मूर्ति प्रगट करदा है। पत्थर ही मूर्ति है, पर वो कुछ फालतू टुकड़ियां नू एक पासे करदा है। अवतार गुरु पीर पैगंबर कहंदे ने तू परमात्मा है, तू ईश्वर है, कुछ फालतू टुकड़ियां नू एक पासे कर दे, कुछ फालतू सोचनी, कुछ फालतू विचार। पर मनुख ऐसा पत्थर है, कहंदा नहीं तू छैणा मारेगा, तू हथौड़ी मारेगा, तू तराशेगा, मैनू कबूल नहीं। पत्थर इनकार नहीं कर सकता तो संग तराश उसनू मूर्ति मान बना देंदा है, मंदिर दे टिका देंदा है। लोकां दे सिर झुक जांदे ने, झुक सकते ने सिर मनुख दे अगों देवतियां दे भी, पर मनुख इनकारी हो जाता है गुरु तो और अवतार तो नहीं। मैं जैसा ठीक। तो दो शब्द बर्दाश्त करना कोई बहुत वड्डी सफलता किसी भी पैगंबरी पुरुष नूं नहीं मिली, किसी भी अवतार नूं नहीं मिली, क्योंकि हर अनघड़े पत्थर ने कह दिता मैं नहीं घड़ना, मैनू ना घड़ो, मैं जैसा हाँ ठीक हाँ। मैं अर्ज करा, मस्जिद दे जाके मुसलमान कह देंदा है मैं जैसा हाँ ठीक है, तू कहंदा रहे मोहम्मद साहब जो कुछ कहंदे कहो। गुरुद्वारे जाके ठीक है सिख मत्था भी टेकदा होवेगा, पर अंदरों ते यही कहंदा गुरु मैं जैसा हाँ ठीक हाँ, तू जैसा कहंदा रहे मैं जैसा ठीक। इसी तरीके नाल मंदिर दे जाके मूर्ति दे अगों मत्था टेक के जरूर हिंदू दी अचेतन मन दी धारणा यही है, ऐ संग तराश ठीक है तू पत्थर नू भगवान बनाया होवेगा, पर हे भगवान मैं भगवान नहीं बनना, हे पैगंबर मैं भगवान नहीं बनना, तू मैनू ना घड़ा। क्यों? ये जिहड़े तू फालतू टुकड़े तराशना चाहता है ना, मैनू ये चंगे लगदे ने, ते मैं ते जींदा ही उन्हां करके पिया, मेरी ते जिंदगी उन्हां करके, ते तू तराशना चाहता है। जिहड़े विचार मैनू बहुत प्यारे ने, जिन्हां करके मैं जी रहा, तू ते यही पिया है कट के परे सुटना चाहता है। यकीन जानो वो अमृत दी छैणी नाल शराब दी बोतल तोड़ना चाहता है गुरु, वो सच दे हथौड़े नाल झूठ नू तोड़ना चाहता है, वो प्रेम दे छेणियां नाल नफरत ते घृणा नू तोड़ना चाहता है, वो एकता दी हथौड़ी नाल दुबदा नू मिटाना चाहता है। पर मनुख कहंदा नहीं ये हथौड़ी अपने कोल रख, ये छेणे अपने कोल रख, यही ते मेरा जीवन है, इसे ते मैं जीवन, इसे ते रस है। कहंदे रहे अवतार मैनू तराशण दे, टुकड़े अलग करन दे, तू परमात्मा हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। पर मनुख भी ऐसा ढीठ है मैं जैसा ठीक। इस वास्ते यकीन जानो मनुख दा ढीठपना नहीं हारिया, पैगंबरां दी मेहनत हार गई,
अवतारां दी मेहनत हार गए, गुरुआं दी मेहनत हार गए। एक आलम दा कहना है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ठीक है, मन दे उस्ताद ज़ौक़। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये मनुखा दी नस्ल पता नहीं कितने पैगंबरां नूं जन्म दे चुकी है, कितने अवतारां नूं जन्म दे चुकी, कितने गुरु आए और गुस्ताखी माफ, सारी असफल गए। बड़ी छोटी जी जबान नाल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा हां। सब असफल गए, सब कुछ हथौड़ी भी सी, छेणे भी हैगे सन, ते सारे तरले भी लेंदे रहे, मैं तेनू रब दा रूप बना दिया, मैं तेनू खुदा जैसा बना दिया। और एक दफा ते खुदा नू भी सजदा करना पेगा, मैं तेनू ऐसा बना दिया। मनुख राजी नहीं होया, नहीं। संग तराश सफल होए ने, पत्थर नू मूर्ति बनाने दे, अवतार सफल नहीं होए मनुख नू परमात्मा बनाने दे। इस वास्ते पत्थर जितने मूर्तिमान हो गए, पत्थर जितनियां खूबसूरत मूर्तियां दी शक्ल अख्तियार कर गए, मनुख इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बन सकिया। इस वास्ते मनुखा नू भी पत्थरां दियां मूर्तियां वेखणियां पैंदियां, क्योंकि मनुख ते मूर्तिमान होया नहीं, पत्थर मूर्ति हो गए। मनुख ते सुंदर होया ना, पत्थर सोना हो गया। मनुख ते काबले दीद बनया ना, पत्थर काबले दीद बन गया। मनुख ते ऐसा होया ना कि सिर झुक सके, तो पत्थर ऐसा होया सिर झुकया। एक संग तराश ने पत्थर नू ऐसा बनाया, इंज कह लो रूहे जमीन ते 80% लोग बुत परस्त ने। सारा बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध दी मूर्ति दे अगों झुकदा है। सारा हिंदू धर्म मूर्तियां दी पूजा करता है। सारा दा सारा जैन धर्म मूर्तियां दा पुजारी है। भावें ईसाईयत बुत परस्त ना होवे, पर चर्च दे अंदर दी ईसा दी मूर्ति है। तसव्वुर देखते है, इतनी दुनिया पत्थर दी बनी हुई मूर्तियां दे अगों झुक रही है। संग तराश एक पत्थर नू घड़ के पत्थर दा भगवान बनाने दे सफल होया है। एक अवतार पैगंबर मनुख नू घड़ के मनुखी भगवान बनाने दे सफल नहीं होया। ये मैं अर्ज कर दें, ये है कदी कदाई कोई कबीर जैसा, कोई रविदास जैसा। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। कबीर राजी हो गया, सब कुछ फालतू टुकड़े अलग कर देते, कबीर राम जैसा हो गया। तो मैं अर्ज करा, पत्थर इनकार नहीं करता कि मैनू ना घड़ा। संग तराश जैसा घड़ी जांदा है, बनाई जांदा उसको। मनुख इनकार करता है, नहीं इत्थे हथौड़ी ना मार, इत्थे छेना ना मार। ते छोड़ छेने हथौड़ियां हैं कि मैं फिर अर्ज करा, वो प्रेम दे छेने नाल नफरत दे टुकड़े नू अलग करना चाहता है। वो एकता दी हथौड़ी दे नाल दुविधा नू तोड़ना चाहता है। वो निर्वैरता दे छेणियां नाल वैर भाव नू मिटाना चाहता है। ते मनुख कहंदा यही मिट गया तो फिर मैं जीवांगा किस तरह? जीवन दा आधार ते मेरे कोल वैर विरोध, नफरत, गिरना, दुविधा, अहंकार, इसे करके ते मैं जी रहा। ते मनुख दा जीवन ते यही है। तो फिर मनुख राजी नहीं होता, मनुख इनकारी होता है। इस वास्ते संग तराश पत्थर नू भगवान बनाने दे सफल होए ने, अवतार मनुख नू भगवान बनाने दे सफल नहीं होए। संग तराश एक मूर्ति नू ईसा बनाने दे सफल होया है, ईसा किसे मनुख नू ईसा बनाने दे सफल नहीं होया। ये
इतनी मैं अर्ज कर दें। एक संग तराश एक पत्थर नो भगवान कृष्ण बनाने दे सफल हो गया है, पर कृष्ण किसी मनुख नो कृष्ण बनाने दे सफल नहीं होया। ये भी मैं अर्ज कर दें, अवतार सफल नहीं होया। की होया? कोई एक कद मूर्तिमान हो गया, कोई एक कद ऐसा जिन्हों वेखिए ते भगवान चेते आवे, कोई कद ऐसा जिन्हों वेखिए ते कलगीधर चेते आवन, गुरु गोबिंद सिंह चेते आवन, गुरु नानक चेते आवे, कोई कद। तो ये निराशाजनक गल है कि इहदे नाल आस नहीं बचती। ये भी शायद उंज ही हो गया होवेगा, ये शायद अपवाद होवे। 1000 बूटे हवन ते एक नूं किधरे फल लगन ते 999 सुख सड़ जान, तो कहना पेगा शायद ये जिहड़ा एक है माली दी निगाह तो बच गया होना, तां ही किधरे हरा भरा हो गया है, क्योंकि 999 ते सुके पे नहीं। वो एक अपने आप नूं माली दे हत्थां दे देण नूं राजी हो गया। ठीक, तू जिस तरह मैनू सिंचदा है, तू जिस तरह मेरी रक्षा करदा है, मैं तेरे हवाले। बाकी बूटियां ने कह दिता तू सानू पानी नाल सिंचना चाहता नहीं चाहिए, तू खाद पाना चाहता नहीं चाहिए, तू साडे दुआले कंडियां दी वाड़ लाना चाहता नहीं। बूटे मनुखी बूटे इनकारी हो सकते, माली असफल रह गए। भावें जमीन दे उत्ते उगदे हुए वनस्पति दे बूटे फल तक पहुंचण दे सफल होंदे ने, एक मनुख बूटा है जो फल तक पहुंचण दे सफल नहीं होंदा, इनकार कर देंदा माली। तो मैं अर्ज कर रहा सी सारियां दे तन अलग अलग ने, मन किधरे किसे नाल एक हो सकता है, उंज मन भी सारियां दे अलग अलग ने। हर एक दी सोचनी अलग अलग, हर एक दे विचारां अलग अलग, हर एक दियां यादां दे कुछ अलग अलग चलता है, पर किधरे किधरे बहुत प्यारा लगन लग पैंदा है। कौन? जो मेरी सोचनी है ओही दूजे दी सोचनी है, जो दूजे दे विचार ने ओही मेरे विचार ने, जिसनों मैं याद कर रहा हूं मैनू याद कर रहा है। यादां एक हो गई ने, विचार एक हो गए ने, सोचने एक हो गई, इसनों कहने मन एक हो गया। पर कितने क नाल होवेगा? आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, औखे ना होना। एक सच्चाई मैं बयान कर रहा, एक कौम उन्हां दा भी सारियां दा मन एक नहीं होंदा, तो हर कौम दे भी झगड़े ने। सिख दा सिख नाल झगड़ा, मुस्लिम दा मुस्लिम नाल झगड़ा, हिंदू दा हिंदू नाल फसाद सारी दुनिया च मौजूद है। सारी कौम दा मन एक नहीं होंदा, सारे देशवासियों दा एक मन नहीं होंदा, किते दूर दी गल, सारे परिवार दा मन एक नहीं होंदा, कतई एक नहीं होंदा। सीमित होंदे जाओ ते परिवार भी बहुत बड़ा हो सकता है, दो भरावां दा मन भी एक नहीं होंदा, प्यो पुत्र दा भी मन एक नहीं होंदा, पति पत्नी दा भी मन एक नहीं होंदा। सोचनी नहीं मेल खांदी, विचार नहीं मेल खांदे, यादां नहीं मेल खांदी। मन दे तल ते उस नाल संबंध जुड़ जाता है जिस नाल विचार मेल खा गए, सोचनी मेल खा गई, यादां दा जोड़ जुड़ गया। तो तन सारियां दे अलग अलग ने, एक जैसे नहीं ने। मन भी सारियां दे अलग अलग ने, किधरे दो मन एक हो जाते, आत्मा सारियां दी एक है। कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक आत्मा एक होती है। मुकम्मल एकता उसे दिन आउंदी है जद कोई आत्मा दे तल ते जींदा है, फिर सारे ही अपने दिखाई देंदे। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, सबको उम्मीद हम आपन के ना, हम सबना के साजन। मैं एक दिन इस्लामी इतिहास पढ़ रहा सी। हसन ने
ਰਾਬੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ, ਬਈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਲਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ नाल नफरत कर, शैतान से नफरत करो। नफरत रही नहीं तो मैं किस तरह करा, किस नाल करा? नहीं रही। हुण शैतान भी खुदा दिखाई देंदा है। हुण मैनूं इंज दिखाई देंदा है, चानणे दी महिमा ही नहीं हो सकती अगर अंधेरा नहीं है। भगवान जिस दे अंदर झलकदा है उस करके ही झलक रहा है, क्योंकि शैतान है। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਪਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰੂਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ। ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, तो मैं किस तरह निंदा करा इस ब्लैक बोर्ड की? ये ना होवे ते अखर चमकदे भी नहीं, किते एक दूजे दे आसरे ते जगत खड़ा है। एक नूं परे करो ते गल बनदी नहीं। पंचदशी दे च एक गाथा है, एक महल तो एक इट उपर है सब तो, चौबारे दे एक इट थल्ले सी। दो इट्टां दी गुफ्तगू लिखी है एक संत ने पंचदशी दे। उपर दी इट कहंदी है, देख मैं सब तो उपर, दूरों दिखाई देनी है, तू सब तो थल्ले दबी हुई, तेरे तक ते किसी दी निगाह भी नहीं जाती, तेनू ते कोई देखदा भी नहीं, तू ते बिल्कुल थल्ले। देख सारियां दी निगाहां दा मैं पात्र, सारियां दी निगाहां मेरे ते पैंदियां, सब मैनू देखदे, मैं सारियां दे सामने। थल्ले दी इट ने आखे, ठीक है सारियां दी निगाहां तेरे ते, सब तैनू देखदे ने, पर मैं जे किधरे थल्ले ना आवां तो तेरा उपर होना भी नहीं हो सकता। अगर मैं थल्लों निकल जावा तो तेरा ऊपर होना भी गया। तो तेरा ऊपर होना इस वास्ते है, तेरा उच्चा होना इस वास्ते कि मैं नीवी हां। तो फिर मैं किस तरह नीवी हुई? क्योंकि तेरा उच्चा होना मेरी निवान ते खड़ा है। अगर मैं बुनियाद दे जान नूं तैयार नहीं तो तू चौबारे दी इट भी नहीं बन सकती। जिस दिन मनुख आत्मा दे तल ते जीवदा, सब एक दिखाई देना। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, दुख नाही सब सुख ही है रे, एका एक ही नेते। कौन कहंदा दुख है ही नहीं, कौन कहंदा बुरा है ही नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। एक दृष्टि बन गई, अगर बुरा दिखाई देंदा पिया तो कोई भला दिखाई देंदा पिया, दो दृष्टियां। चंगा दिखाई देंदा पिया तो कोई माड़ा दिखाई देंदा पिया, दो दृष्टियां। पाप दिखाई दे रहा है, फिर पुण्य दिखाई दे रहा है, दो दृष्टियां। पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को सुरग बचावत, की पाप है की पुण्य है? नहीं, गल खत्म। की स्वर्ग है की नरक है? आत्मा दे तल ते जीण वाले दे तल ते दुविधा खो जाती है। सरग स्वर्ग नरक, जन्नत दोजख, सुख दुख, नफा नुकसान, इज्जत बेइज्जती, छोटा वड्डा, सुंदरता करूपता, ये दुविधा सारी मिट जाती है।
शरीर दे तल ते जीण वाले वास्ते दुबदा है। दो ने, क्योंकि एक शरीर जैसा दूसरा है ही नहीं। तो एक दफा इस तरह दो वेखण दी आदत बन जाए तो सब कुछ दो ही ने। अगर कहिए वो बहुत वड्डा है तो फिर कोई छोटा भी है। वो बहुत सियाणा है तो फिर कोई मूड भी है। वो बहुत सुंदर है तो फिर कोई करूप भी है। वो बहुत ताकतवर है तो कोई कमजोर भी है। एक दे मुकाबले ते दूसरा खड़ा है। तुसी एक दा नाम लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो पुरुष है तो फिर स्त्री भी खड़ी है। तुसी आखो ये बच्चा है तो फिर जवान भी खड़ा है। एक दा नाम नहीं ले सकते। एक दा नाम लिया, दूजा खड़ा है। ये दुविधा बनी रहेगी। ते जद इस तरह दो दिखाई देणगे तो फिर फैसला भी करांगे किस दे पाके च खड़े होना है, दोवां दे चों, क्योंकि दो एक जैसे ते हैं नहीं। तो दुविधा बनी रहेगी, जीवन भर दुविधा बनी रहेगी। एक तन जैसा दूसरा तन नहीं है, ते एक मन जैसा भी दूसरा मन नहीं है। धन गुरु नानक ने बड़ी कोशिश की थी, नहीं मन मेल मिलते कोई गल नहीं। तो मैं अर्ज करा, जो कबीर दी सोचनी है वो जयदेव दी सोचनी नहीं हो सकती। कबीर जनेऊ दा मजाक उड़ांदा है। हम घर सूत तने नित दाना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। तू जनेऊ जिहड़ा पहनिया होया ये साडे घर बनदा सी, जुलाए असीं सूत्र कतदे असीं बनाने आ। ते जद सूत कत के साडे घरों ही बन के तू गल दे च पाना है ते असीं ते तैनूं पहनाण वाले तू ब्राह्मण किहड़ी गल दा हो गया ते असीं शूदर किहड़ी गल दे हो गए। वो तैनूं चोट करदा है। लेकिन जयदेव जनेऊ पहनदा है, ब्राह्मण है, उसदी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब। वो ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण है, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। वो बड़ा कीमती पदा है उसका गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे। परमाउद पुरख मनो पिमंसत आद भाव रतन, दरबार साहिब दे जिन्हां नूं परमानेंट तौर ते पक्के तौर ते पाठी सिंह रखना होवे ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पदा पढ़वांदे ने। परमानेंट तौर ते जिसनूं भी रखना पहले पदा पढ़ के सुना, ये शुद्ध पढ़ सकदा है कि तू नहीं। परमाद पुरख मनो पिमंसत आद भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्ब गतन, केवल राम नाम मनोरमं बद आत्मृत तत्मयं, नदनोद बद जस सिमरैन, जन्म जराद मरण भयं। ये ब्राह्मण सी, जनेऊदारी सी, तिलक भी लांदा सी, मस्ती डुबिया रहिंदा सी, गोबिंद गोबिंद दे गीत गांदा सी। इस पदे विच भी वो ऐसा कहता है, गोबिंद गोबिंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जय देव आयो तत्सुभटंग भवभूत सर्वगतन। ये ब्राह्मण जयदेव बैरूनी रूप दे ते फरीद नाल सहमत नहीं हो सकता। जो फरीद कहता है, उठ फरीदा उजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना नवे, जो सो सिर कप उतार। ओदी साधना कुछ होर, एदी साधना कुछ होर। वो रोज सरिता दे जाके, नदी दे जाके इशनान करदा है, वुजू साजण दी गल करदा है। ये 5 वक्त नमाज पढ़न दी गल करदा है, 2 वक्त पूजा पाठ करन दा प्रेरदा है। मुख्तलिफ रस्तियां तो गए ने, मुख्तलिफ मन ने, मुख्तलिफ सोचनी है, मुख्तलिफ विचारा ने, पर गुरु नानक कहंदे ने कबूल ने। कोशिश की थी, कोई गल नहीं, परवान है, क्योंकि गुरु नानक दा जीवन आत्मा दे तल ते सब कबूल ने, सब परवान ने, सारियां नूं नाल लेके चल रहे। कबूल है फरीद, कबूल है जयदेव। और ये नमाज पढ़दियां पढ़दियां उस अवस्था ते पहुंचे ने जिस अवस्था दा गुरु नानक जिक्र करदे ने, फरीदा खालिक खलक, खलक वसे रब माए, ये मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई ना है। फरीद कहंदे हुण मैं काफिर किसनू आखां, जद खुदा तो बिना है ही नहीं कोई, मनु किसनू काफिर आखां, किसनू कहां।
यही नामदेव कहते ने सवे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे। तो मैं अर्ज करा तन सारियां दे अलग अलग ने, मन भी किधरे किसे नाल मेल खाएगा, सारियां नाल नहीं। आत्मा सारियां दी इक्को ही। कथा कीर्तन तो इलावा वाहिगुरु मंत्र दा जप और तरह तरह दी साधना, इहदी सफलता उस दिन मनने जिस दिन एक दिखाई देवे। तो एक दिखाई देंदा हुण ये आत्मा दे तल ते जी रहे, उपर चला गया। एक दिखाई देण तो मुराद इनू इज्जत ते बेइज्जती दे च भी एक दिखाई देंदा है, इनू नफे ते नुकसान दे च भी एक दिखाई देंदा है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। इसनू सोने ते मिट्टी दे च भी एक दिखाई देंदा है। सम हो गया। ये सम शब्द है ते संस्कृत दा समभाव, बराबर, सब कुछ बराबर। छोटा वड्डा नहीं, ऊंच नीच नहीं, सोना वड्डा नहीं, मिट्टी छोटी नहीं, सुई छोटी नहीं, तलवार वड्डी नहीं। जिस थां ते सुई दी लोड़ पैगी वो तलवार कम नहीं करेगी। कंडा गढ़ना है पैर दे चों, तलवार नाल नहीं निकलेगा, सुई नाल निकलेगा। सीना है कुछ, तलवार नाल नहीं सिया जाएगा, सुई नाल सिया। पर हिफाजत करनी है, किसी दे कदमां नूं रोकना है ताकि कोई लिताड़िया ना जाए, तो सुई नाल नहीं होवेगा। हर चीज दा अपनी थां ते उपयोग है। जो काम सुई कर सकदी है तलवार नहीं कर सकदी, जो तलवार कर सकदी है सुई नहीं कर सकदी। हर चीज दी अपनी अपनी थां ते उपयोगिता है। तो ब्रह्म ज्ञानी कहंदा कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई सुई छोटी नहीं, कोई तलवार वड्डी नहीं, कोई मिट्टी छोटी नहीं, कोई सोना वड्डा नहीं। छोटा वड्डा है ही नहीं। अर्ध उर्द ऊते नाही, रात दिन अस्ते नाही। अर्ध छोटा वड्डा हुण कोई भी नहीं। आत्मा दे तल ते जीए बिना व्याकुलता मनुख दी खत्म नहीं हो सकती। ये भी मैं अर्ज करदे हां। मन दा फैलाव जितना होवेगा, अक्सर ऐसा होवेगा बहुतियां नाल मेल नहीं खाएगा। बहुत सियाणा मनुख उहदा ते अपने परिवार नाल मेल नहीं मिलदा। दुनिया दे सारे दार्शनिक चिंतक अपने घर तो टुटे रहे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, नहीं मेल खाता। इतने सियाणे हो गए, इतनी महान सोचनी हो गई, इतने प्रबल विचार हो गए, कौन घर दे च मेल खावे। 90% भगतां दे घर दे तनाव रहा है। दूर क्यों जावे। कबीर दा हवाला मैं थोड़े सामने रख दिया, बाकी सारियां दी। जैसे मैं कल भी अर्ज की थी, 20 रुपया दे बदले पिता कल्याण दास गुरु नानक नूं थप्पड़ मार देने। कोई गुरु नानक दे विचारां नाल पिता सहमत हो। माता कहंदी सी कोई पुत्र है सुधाई है। कबीर दी मां कहंदी है नित उठ कोरी कागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो। हमारे कुल कौने राम कहो। साडे कुल दे किसने राम आखे। असी कम धंधा करने वाले बंदे, साडे कुल वकत किथे। भाई राम नाम दी दुनिया लगता है। जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। जिस दिन दी इसने माला पकड़ी साडे घर सुख है ही कोई नहीं। तो कबीर दी मां दा कबीर नाल तालमेल नहीं बैठता। कबीर इतना सियाणा हो गया, समुचे बनारस नाल भी तालमेल नहीं बैठता। कबीर इतना सियाणा हो गया, वक्त दी हुकूमत दा भी तालमेल नहीं बैठता। और इतना सियाणा हो गया, सारे देश दा भी तालमेल नहीं बैठता। जितना कोई सियाणा हो जाएगा तालमेल नहीं बैठता। और फिर की होवेगा? विरोधता। ऐसा केड़ा अवतारी पुरुष है, ऐसा केड़ा भगत है जिस दी रज के विरोधता नहीं। और नहीं विरोधता हुई तो संत भगत है भी नहीं। ये भी मैं अर्ज कर रहे। अजे वो संसार दे तल ते जी रहे। अजे कोई बुलंदियां नूं नहीं छुआ उसने। अजे जगत नाल तालमेल बिठा लेंदा है। जितना नीवा जगत है आप उतना नीवा हो जाता है। ताई तालमेल बैठदा, वरना बैठे भी ना।
ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੰਡਲ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਐਸੇ ਮੰਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਨੇ। और कुछ ऐसे भी ने जो मन तो भी ऊपर उठ गए, रूहानी मंडल, आध्यात्मिक मंडल, परम आनंद दे नाल भरे। मरदाने ने गुरु नानक ते प्रश्न कीता सी ते धन गुरु नानक ने मंडल उसनू दिखाए सन। मरदाने नू सब कुछ जन्म साथी च। मरदानिया असी जिस धरती ते जी रहे हैं शरीरक मंडल है, भौतिक मंडल है। ऐसे मंडल ने, मानसिक मंडल ने, सूक्ष्म शरीर ने, रब्बी विचार ने, सोचनी ने, यादां ने, और उत्थे ओ रह रहे ने जिन्हां दे मन एक ने। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी ने मन तो अगे लंघ गए, क्योंकि मन दा मेल सारियां नाल नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज कर दिया, जिथे तन दा मेल नहीं है, मन दा मेल भी नहीं है, आत्मा दा मेल है। साधना कर करके कुछ मनुख शरीर तो ते उच्चे उठ जाते ने, हर वक्त सोचनी विचार दी याद दे तल ते जींदे ने, दे तल ते जींदे ने। ते नहीं उठे कि सारा ब्रह्मंड ईश्वर दा रूप दिखाई देवे, अजे ये गल नहीं है। उस दे वास्ते की है, जिवें साधना करके तन तो उच्चे उठे ने ते मन दे तल तक पहुंचे ने, और इतनी गहरी साधना कर हुण अकल तो भी अगे लंघा, मन तो भी अगे लंघा। एक सियाणे मनुख लई इस तो अगे निकलना औखा हो जाता है। किसे नूं कबीर कहंदे ने, सुध में ना सुध रही, मत में ना मत। आपां लंघ गए, सुध बुध तो अगे लंघ गए, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰੇ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਭਗਤ ਪਾਗਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਅਕਲ ਤੋਂ